حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترم و معزز علماء اکرام، عمائدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی مجلس میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن عظیم نیک مقصد کے خاطر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مخلص بنائے اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یا یوں کہیں کہ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس روئے زمین میں آنے کے بعد اپنی مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یہی اطاعت اور فرما برداری وہ ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کو یہ سوال اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے، اور اس سوال کو ہر وقت ہمیشہ دہرانا چاہیے کہ آخرکار اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنے مقصد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے اس کے لیے راستہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان اپنے مقصد ہی کو بھلا دے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، تو وہ ہر در پر اپنے سر کو جھکائے گا، ہر اچھی اور بری چیز کو قبول کرے گا، بلکہ ایسا انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ جہاں تک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، جہاں تک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہے، یہ بات جان لیں کہ دین اسلام، اس کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ دین اسلام کے اندر جس طرح اللہ کی اطاعت کا ایک مقام بتایا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کے بعد نبی کی اطاعت کو دین کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارتے ہوئے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو آدمی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، آپ کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ محترم حاضرین، اتباع کہتے کسے؟ اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ اتباع رسول کا اگر مختصر سی تعریف کی جائے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یعنی آپ کی پیروی کرنا۔ کن چیزوں میں؟ عقیدے کے اندر، اسی طرح آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، جن کاموں کو آپ نے کیا ہے اس میں، اور جن کاموں سے آپ نے اپنے نفس کو اور لوگوں کو روکا ہے اس میں، چاہے وہ عمل واجب ہو، چاہے وہ عمل مستحب ہو، چاہے وہ عمل مباح ہو، یا ایسا عمل جسے اسلام حرام اور مکروہ قرار دیتا ہے، اور یہ سارے کام صحیح نیت کے ساتھ کرنا، اس کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر گفتگو کریں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شریعت کے اندر کیا ہے، اگر کوئی آدمی اتباع کرے گا تو اسے کیا ملے گا، اگر کوئی اتباع نہیں کرے گا تو اسے کیا نہیں ملے گا،
اگر مختصر سے اتباع رسول کے مقام و مرتبے کو اسلام کے اندر بیان کیا جائے تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کی اتباع کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. اور آج معاشرے کے اندر ایسے شر پسند عناصر آپ کو ملیں گے جو نبی کی اتباع کا بھی انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں، عمل سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو زبان اور عمل دونوں سے انکار کرتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا اہل قرآن کا. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو یا احادیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کے برعکس کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، نبی کے متبع ہونے کا دعویٰ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آئے تو ان سے بڑھ کر عمل کا جھوٹا کوئی اور نظر نہیں آتا. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو آدمی نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا، اور جس نے نبی کی اتباع کو چھوڑا چاہے وہ عمل کر کے آسمان و زمین کو بھر دے، ایسے انسان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر کوئی عمل کیا مگر اس عمل پر ہماری مہر نہ ہو، یعنی ہم نے اس کے تعلق سے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی مسئلہ ذکر نہ کیا ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا عمل مردود ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ لا یصح القول الا بعمل، کہ کسی کا زبان سے کہا ہوا کوئی لفظ قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. کیا کہتے ہیں امام حسن بصری؟ کہ کوئی زبان سے کہہ دے یہ فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. پھر فرماتے ہیں ولا یصح قول وعمل الا بالنیہ، اور نہ کسی کا زبان سے کیا ہوا کوئی لفظ یا عمل سے کیا ہوا کوئی کام اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس انسان کی نیت درست نہ ہو. پھر فرماتے ہیں نہ کسی کا قول، نہ کسی کا عمل، نہ کسی کی نیت اللہ کے پاس قبول ہوگی جب تک کہ وہ متبع سنت نہ ہو. تو گھوم پھرا کر بات یہ ہے کہ چاہے آپ زبان سے کچھ کہیں، اپنے عمل سے کچھ کریں، یا کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ بھی کریں، ان تمام چیزوں میں انسان کو نبی کا متبع ہونا ضروری ہے. محترم حاضرین، دوسری بنیادی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی اتباع کا انکار کرے تو ایسا انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کلمہ ہے، اور اگر کوئی آدمی اسلام میں باقی رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کلمہ ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اگر کوئی آدمی نبی کی اتباع چاہے اپنے عمل سے نہ کرے یا زبان سے انکار کرے، ایسا انسان کبھی صحیح مسلمان یا مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ اسے مرنا ہے، اس کا موت کا وقت اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا، اگر اسے یہ امید ہے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس انسان کو چاہیے کہ صحیح عمل کرے، صالح عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. علماء اکرام سے پوچھا گیا کہ عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ وہ نیک عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر انسان اللہ سے ملاقات کرے گا تو اسے وہاں شرمندگی نہیں ہوگی؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے جسے کرے گا تو اللہ کے پاس اس کی خوشخبریاں ملیں گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی دو بنیادی شرطیں، عمل صالح کی دو بنیادی شرطیں. سب سے پہلے کہ وہ مخلص ہو، جو بھی عمل کرے صرف اللہ کے لیے، اور دوسری شرط کہ وہ متبع سنت ہو، وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شریعت کے دو عظیم اصول کو بیان کیا. پہلی چیز اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت نہ کریں، وَأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور دوسری اہم شرط کہ ہم اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے اللہ نے اس کے رسول نے بتایا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرنا چاہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن ایسے کام کرے جس کام کو خود اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا جسے رسول نے نہیں کیا، یا آپ کے بعد صحابہ نے نہیں کیا، اور پوری امت اسے عمل سمجھتی ہو، صحیح سمجھتی ہو، تو ایسا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. بلکہ ہر عمل پر جس طرح اللہ کی فرما برداری ہوگی ویسے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر بھی اس پر ہونا ضروری ہے. دوسری
तीसरी एक अहम बात कि जो इत्तिबा सुन्नत की अहमियत पर दलालत करती है वो ये है कि कोई भी इंसान अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन याद रखिए कि कोई अमल कर भी ले जो अल्लाह के फरमाबरदारी यानी अल्लाह के कहे हुए कामों की तरफ हो मगर रसूल की मुखालफत करता हो, तो अगर उसका अमल सही भी होगा, अकीदा सही भी होगा, इबादत भी सही होगी, लेकिन सिर्फ नबी की सुन्नत को छोड़ता होगा, तो ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। गोया यूं कहें कि अल्लाह की रजामंदी जिसकी बुनियाद पर जन्नत में जाएगा, नबी की इत्तिबा को छोड़कर कोई अल्लाह की रजामंदी को हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, कि मेरी उम्मत जो है सब के सब उम्मत के जितने लोग हैं सब जन्नत में जाएंगे मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। तो सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी इस इनकार का मतलब क्या है कि किसने इनकार किया, किस चीज का इनकार किया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन अताअनी फक़द दख़ल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इत्तिबा की, जिसने मेरी बात मानी, जिसने मेरी सुन्नतों को अपनाया उसने मेरी इत्तिबा की और जिसने इनकार किया उसने इनकार किया। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी कही हुई बातों पर अमल, ये इंसान को जन्नत में ले जाती है। मोहतरम हाज़रीन, और ये बात भी है कि इंसान ज़बान से कुछ भी कहे, जैसे अभी शेख साहब ने एक शेर पढ़ा कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी इत्तिबा करता है, तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो आदमी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है वो इत्तिबा करेगा। और जो झूठा है, जो आदमी न अल्लाह से मोहब्बत करता है न उसके रसूल से मोहब्बत करता है, तो ऐसा आदमी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न मुत्तबे हो सकता है। तो गोया नबी की इत्तिबा ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत की दलील है। मुहतरम हाज़रीन, चलिए अगर बात करें सहाबा इकराम के जज्बे की कि सहाबा इकराम अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अज़ीम जज्बा सहाबा इकराम को अता किया था, इसकी बहुत सारी और बेशुमार मिसालें हमें कुरान व हदीस के अंदर मिलेंगी, जो मिसालें हमें बताती हैं, जो मिसालें बताती हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जो अल्लाह ने सातों आसमान से एक बशारत दी और अल्लाह ने कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे खुश हुआ और ये अल्लाह से खुश हुए। तो देखिए दोनों पहलू अल्लाह ने बयान किए, अल्लाह सातों आसमान से सहाबा से और इनके अमल से खुश हुआ, और ये भी अल्लाह को रब मानकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर और दीन इस्लाम को दीन मानकर राजी हुए, तब जाकर क्या है ये सहाबा इकराम को ये मकाम मिला। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इनकी क्या फजीलत है इसके बारे में आपने बारहा सुना होगा, बहुत सारी बातें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बड़ा प्यारा कौल सहाबा के बारे में कहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन अत्क़ा क़ुलूबिल इबाद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को देखा, अल्लाह ने लोगों के दिलों को देखा, तो अल्लाह ने सबसे मुत्तकी, सबसे प्यारा दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। तो अल्लाह ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए चुन लिया, अपने दीन का रसूल और खादिम बना दिया और दीन की जिम्मेदारी उनको दे दी। फिर अल्लाह ने लोगों के दिलों को देखा, तो अल्लाह ने नबी के बाद सबसे पाक और मुक़द्दस दिल सहाबा के दिलों को देखा, तो अल्लाह ताला ने सहाबा को अपने नबी का ताबे बना दिया और नबी के साथ लगा दिया। मुहतरम हाज़रीन, ये सहाबा इकराम जो मकाम व मर्तबा इनको मिला है ये अल्लाह के फजल से मिला है, ये मर्तबा अल्लाह ने इनको दिया है। यही वजह है कि आप देखें कि सहाबा इकराम का वजूद जब तक था उनका वजूद ज़मीन के लिए बरकत था। और ये बात भी मान लीजिए कि जो नबी की इत्तबा करेंगे, सहाबा की इत्तबा करेंगे और सहाबा की नक्शे कदम पर चलेंगे, इनके अमल भी बरकत वाले होंगे, इनके कदम भी बरकत वाले होंगे जैसे सहाबा इकराम के हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद आप मस्जिद से बाहर चले गए, जब इशा का वक्त हुआ तो दोबारा अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हुए। जब आप दोबारा इशा की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने सहाबा को देखा कि जिस हालत में आपने उनको मगरिब की नमाज में छोड़ा था, वापस आने पर आपने सहाबा को वैसे ही पाया। गोया मगरिब से लेकर इशा तक वो अल्लाह के रसूल का इंतजार मस्जिद में कर रहे थे। अल्लाह के नबी आए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आप खुश थे। आपने सहाबा से पूछा, क्या उस वक्त से लेकर अब तक यहीं बैठे हो, उस वक्त से अब तक यहीं बैठे हो? तो सहाबा ने कहा कि हम बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्यों बैठे हो? तो सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके पीछे मगरिब की नमाज अदा की, हमारा इरादा था कि इशा की नमाज आपके पीछे अदा करके ही यहाँ से जाएंगे, तब तक आपका इंतजार करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ गई। अल्लाह के नबी अक्सर जब आपको खुशी होती आप अपने चेहरे को आसमान की तरफ किया करते। आपने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाही अजलिसकुम, कसम खाकर कहो क्या इसी मकसद से तुम यहां बैठे हो? सहाबा ने कहा कि इसी मकसद से बैठे। अल्लाह के नबी ने फिर अपने चेहरे को आसमान की तरफ किया, हाथ को उठाया और आपने कहा कि अन्नुजूम अमनतुल लिस्समा फइज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअद। अल्लाह के नबी कहते हैं
सुन लो कि ये जो सितारे हैं ये आसमान के लिए अमानत है, ये आसमान के लिए अमन का बाइस है। जब ये सितारे हट जाएंगे तो जो वादा अल्लाह ने क़यामत का इस आसमान की बर्बादी का किया है वो वादा पूरा हो जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अमान का बाइस हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दीन से नहीं फिर सकते, तुम गुमराह नहीं हो सकते, गोया मैं तुम्हारे लिए अमन का बाइस हूं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन का बाइस है, जब तक ये सहाबा मौजूद होंगे बिदातें खुराफात दुनिया में जन्म नहीं ले सकती। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर गौर करिए कि अल्लाह के नबी ने सहाबा की बरकत यानी सहाबा के वजूद को इस कदर बरकत वाला बनाया कि सहाबा मौजूद थे तो बिदात की भी इतनी मजाल नहीं थी कि सहाबा के ज़माने में कोई बिदात आए। तो इसका मतलब यह हुआ, यह हदीस बताती है कि सहाबा के ज़माने में जो चीज़ें थी वो सुन्नत थी, और सहाबा के बाद चाहे जितने भी नेक अमाल अगर किसी ने किए हैं और सहाबा ने उसे नहीं किया है तो अमल क्या हुआ? वो अमल बिदात का हुआ, वो अमल बिदात का हुआ। मुहतरम हाज़रीन, बल्कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा की ज़िंदगियाँ इतनी बरकत वाली है कि एक वक्त आएगा लोग लड़ाई के लिए निकलेंगे, लोग अल्लाह के लाल लड़ने के लिए निकलेंगे, तो लोगों में से कहा जाएगा क्या तुम में से कोई ऐसा इंसान है जिसने अल्लाह के रसूल को देखा है? यानी जंग में पूछा जाएगा, लश्कर में पूछा जाएगा क्या तुम में से कोई सहाबी है? कहा जाएगा कि हाँ एक सहाबी है। इतना बड़ा लश्कर गैरों से लड़ने वाला, लेकिन सिर्फ एक सहाबी का वजूद। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक सहाबी की बरकत से अल्लाह उस जंग को फतह कर देगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा क्या तुम में से कोई ऐसा भी है जिसने किसी सहाबी को देखा है? तो कहा जाएगा कि हाँ मौजूद है। तो किसी ताबई की बरकत से भी अल्लाह एक मुकम्मल लश्कर को फतह देगा। मुहतरम हाज़रीन, ये सहाबा जिंदा थे तो इनकी जिंदगियां बरकत थी। आइए उन्हीं सहाबा इकराम की कुछ मिसालों को हम देखते हैं, जो मिसालें हमें बताती हैं कि ये सहाबा इकराम ये ज़बान से जिस तरह नबी के इत्तिबा के दावेदार थे उनका अमल ही बताता था। मुहतरम हाज़रीन, बहुत सारी मिसालें, एक बड़ी मशहूर मिसाल खातिमुज़्ज़हब की हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी। ये मामला उस वक्त का है जब ये सोने को मर्दों के लिए हराम नहीं करार दिया था। अल्लाह के नबी ने एक सोने की अंगूठी पहनी, और जो सोने का नगीना था जिस पर नग लगाया जाता है, अल्लाह के नबी ने उसे अंदर बाजू किया था और अल्लाह के नबी उसे पहना करते। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनाई और अल्लाह के नबी ने उसके खातम उसके नगीने को अंदर रखा, सहाबा ने देखा, सहाबा इकराम आपकी इतनी कॉपी करते, आपके नक्शे कदम पर चलने का इतना सहाबा को शौक था कि आपको करते देखा, फौरन अक्सर के अक्सर सहाबा ने सोने की अंगूठी बना ली और वैसी बनाई जैसे अल्लाह के रसूल ने बनाई थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाल कर रख दिया, कहीं यह चीज क्या है सुन्नत ना बन जाए, वाजिब ना बन जाए। सहाबा इकराम का मामला ऐसे ही होता। वो हदीस भी बड़ी मशहूर है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे और आप जानते हैं कि उस वक्त की मस्जिदें कैसी थी। अल्लाह के नबी आए थे, आपने छप्पर की मस्जिद बनाई थी, नीचे मिट्टी थी, बारिश हो जाती पूरा कीचड़ हो जाता, उसी कीचड़ में अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा करते, सहाबा नमाज पढ़ा करते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने जूते पहने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूता पहना, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा में से कुछ सहाबा ने या अक्सर सहाबा ने भी जूते पहने थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज अल्लाह के नबी ने अपने जूतों को निकालकर बाजू में रख दिया। अब सहाबा इकराम देख रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने नमाज के दौरान जूतों को निकाला। अक्सर के अक्सर सहाबा जिन्होंने जूता पहना था उन्होंने भी जूते निकाल दिए। जब नमाज खत्म हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा कि सबने जूते निकाल दिए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी हमने आपको करते देखा तो हमने किया, आपने किया तो हमने किया, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा जज्बा है। अब अल्लाह के नबी कहने लगे कि तुमको पता नहीं था कि मैंने क्यों किया? फिर आपने वजह बताई कि मैं जूतों के साथ नमाज पढ़ा रहा था, जिब्राईल आए और आकर बता दिया कि आपके जूते के नीचे गंदगी है, और नमाज की बुनियादी शर्तों में से है कि जब नमाज पढ़ेगा तो जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, और लिबास में जूते भी आते हैं। लिहाजा जिब्राईल ने मुझे बताया, तब मैंने जूते निकाल कर रख दिए। सहाबा इकराम सवाल नहीं किया करते थे हदीस में ऐसा क्यों है, सहाबा इकराम अमल करके दिखाया करते। मुहतरम हाज़रीन, सहाबा इकराम का मुआमला ये था कि जो आदमी अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं मानता था, सहाबा के सामने किसी ऐसी इंसान की मिसाल लाई जाती, सहाबा इकराम गुस्सा होते, नबी की हदीसें बयान की जाती, कोई आदमी हदीस पर एतराज़ कर देता, कोई ये कहता कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की कोई मुखालफत करता, सहाबा इकराम को गुस्सा पारे पर चढ़ जाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों के सामने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे थे और कहते कि ला तमनउ इमा अल्लाहि अन
अलमुसल्लीन फिल मस्जिद, कि जो अल्लाह की बंदियां हैं, जो अल्लाह की लौंडियां हैं, यानी ख़वातीन के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर नबी की हदीस सुना रहे थे कि अगर ख़वातीन मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना चाहे तो इन्हें तुम रोका ना करो। तो एक सहाबी बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे ने एतराज़ करते हुए कहा कि मेरे दादा यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब को पसंद नहीं था कि उनकी बीवी मस्जिद में जाए, तो लिहाजा उसी जज्बे को पालते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे ने कहा कि मैं तो अपनी बीवी को मस्जिद में जाने से रोकूंगा, मैं तो अपनी बीवी को मस्जिद में जाने से रोकूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जब ये देखा तो उनका गुस्सा चढ़ गया, मारे गुस्से के कहने लगे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूं और तुम कहते हो कि मैं औरतों को रोकूंगा। नबी की हदीस की मुखालफत ये सहाबा को बर्दाश्त नहीं थी। इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते सहाबा फौरन रुक जाते, फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त उनकी हालत क्या है, कैफियत क्या है, गुस्से में होते तब भी इत्तिबा करते, नशे में होते तब भी इत्तिबा करते। बड़ी मशहूर किस्से हैं, आपने बारहा सुना होगा। हजरत अबू सईद अल बदरी, अबू मसऊद अल बदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी लौंडी को मार रहे थे, पीछे से एक शख्स की आवाज आती है, इअलम या अबा मसऊद, लौंडी को मार रहे हैं, कोड़े से मार रहे हैं, पीछे से आवाज आती है, अबू मसऊद इस बात को जान लो। पहचाना कि नहीं कोई, वो आदमी करीब आए, करीब आकर उन्होंने दोबारा दोहराया, कहा इअलम या अबा मसऊद, अबू मसऊद इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो। तीसरी मर्तबा जब कहा तो पलट कर देखते हैं कि वो कोई और नहीं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन कोड़ा फेंक दिया, फौरन जो हाथ में कोड़ा था फेंक दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी नसीहत करते हुए कहते हैं कि इस लौंडी पर जितनी ताकत जितनी कुदरत तुम रखते हो, अल्लाह उससे कई ज्यादा कुदरत तुम पर रखता है। अगर इस पर जुल्म करोगे तो याद रखना अल्लाह ताला की जात तो हर चीज पर कुदरत है। फौरन कहा, फौरन रोक दिया। वो भी किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब शराब हराम होने का ऐलान आया, कितने ऐसे सहाबा इकराम थे इस शराब के हराम होने से पहले शराब को पीते थे, और ये शराब को पीना कोई अचानक नहीं था, उनके बाप दादा पीते थे, और ये नशा करना ये खानदानी और नस्लों की आदत थी। और आप बात जानते हैं कि आदतें ऐसी नहीं छूटती हैं, लेकिन जब जज्बा इत्तिबा का हो, आदत एक हो, बाप दादा की हो, खानदानों की आदत हो, लेकिन इत्तिबा का जज्बा हो, तो ऐसी आदतें चुटकी में छोड़ी जा सकती है। सहाबा इकराम ने जिंदा मिसाल दी, शराब हराम होने का ऐलान आया, सहाबा इकराम पी रहे थे, पिला रहे थे, हुक्म हुआ कि अल्लाह के रसूल ने शराब को हराम करार दिया, पीते पीते प्यालों को तोड़ दिया, जो मौजूद था उसे बहा दिया। और सहाबा इकराम का यह जज्बा बताता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अमल कैसे था। मुहतरम हाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक की बड़ी मशहूर रिवायत है। हज़रत अनस कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टेलर ने, एक खैयात ने दावत दी, खाने के लिए बुलाया। तो हज़रत अनस कहते हैं कि मैं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था, तो मैं भी आपके साथ चला गया। अब जैसे ही उसने दावत दी तो उसने हमारे सामने खाना लाकर रखा, खाना लाकर रखा, रोटी थी और सब्जी थी और उसके अंदर कद्दू था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए बैठे तो हज़रत अनस भी मौजूद हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हांडी में से कद्दू को ढूंढ ढूंढ कर खा रहे थे, अल्लाह के नबी को पसंद था। तो हज़रत अनस कहते हैं खुदा की कसम, जब मैंने अल्लाह के रसूल को उस कद्दू को तलाश करते हुए देखा तो उसके बाद अगर मेरे नजदीक कोई महबूब ग़िज़ा बन गई तो वह कद्दू बन गया, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो फितरी चीज थी, आप पसंद करते थे। मगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इस कदर आगे थे, इतने सच्चे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अलावा उन्हें और कोई चीज़ नजर नहीं आती थी। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक की एक बड़ी मशहूर रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लड़ाई का मौका था, उहद का मौका था, तो अल्लाह के नबी ने अपनी तलवार निकाली जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन इस तलवार को मुझसे लेगा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कौन मुझसे तलवार को लेगा। तो सहाबा की एक बड़ी जमात ने हाथ उठाया, कहा कि हम लेंगे, हम लेंगे। सहाबा की बड़ी जमात ने हाथ उठाया, लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर कहा मैं याखुज़ बिहक़्क़िहा, कौन है जो इस तलवार को उसके हक के साथ लेगा, यानी इसको लेगा तो इसका हक अदा करेगा। सबके हाथ नीचे हो गए, सबके हाथ नीचे हो गए, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, वहां कोई आदमी डींगे नहीं मार सकता। अगर उस तलवार को लेना है तो उसके हक के साथ लेना है। तो सारे सहाबा के हाथ नीचे हो गए, क्योंकि सहाबा इकराम का जज्बा सच्चा था। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम सम्माक बिन खरशा, जिन्हें अबू दुजाना रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा जाता था, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं इसको इसके हक के साथ लूंगा। लिहाजा उस तलवार को लिया और मुशरिकीन की सफ़ों को उन्होंने उलट दिया था। यह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मामला था। मोहतरम हाज़रीन, ये वाक़े बड़े मशहूर हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का कैसा मामला होता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, जब खैबर को फतह किया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर एक हुक्म दिया। सहाबा मौजूद हैं, हांडियां चढ़ चुकी हैं, आग लगा दी जा चुकी है, खाना तकरीबन पक चुका है और उसमें पालतू गधों का गोश्त था।
उस वक्त पालतू गधे खाए जाते थे, तो सहाबा ने गधों को काटा था और उसका गोश्त हांडियों में पक रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ऐलान कहा कि ये पालतू गधों का गोश्त ना खाए, यह भी जायज़ नहीं है। गोश्त पक चुका है, हांडियों में मौजूद है, उतारना है, खाना है और यही खाना है, इसके अलावा कोई खाना मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, सहाबा ने नहीं कहा अल्लाह के नबी हम क्या खाएंगे, सहाबा गए उन हांडियों को सीधे उलट दिया, उन हांडियों को गिरा दिया। क्योंकि बात जब नबी की इत्तिबा की आए, अमल करने की बात आए, आप आगे का ना सोचें कि हमारा क्या होगा, खाने का क्या होगा। नबी की इत्तिबा का जज्बा यही होता है जिसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मुत्तबईन में से थे, उनमें सारी सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर मौजूद हैं, आप मिंबर पर मौजूद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े, सहाबा इकराम आ रहे हैं, कुछ मस्जिद में खड़े, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर चढ़ने के बाद कहा इजलिसू, बैठ जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद के दरवाजे पर है, अब उन्हें नहीं पता कि अल्लाह के नबी ने किसे बैठने के लिए कहा। जैसे ही अल्लाह के नबी की आवाज सुनी, बैठ जाओ, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए, दाखिल भी नहीं हुए, मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने देखा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, तो अल्लाह के नबी ने कहा ताले अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद तुम आओ, मैंने तुमको नहीं कहा, ये जो लोग यहाँ खड़े मैं उनको कहा है। लेकिन जज्बा ऐसा कि नबी ने कहा तो अमल करना है, चाहे वो दरवाजे के बीच पर बैठना पड़े, मस्जिद के अंदर या बाहर बैठना पड़े। मोहतरम हाज़रीन, इस तरह की कितनी ऐसी मिसालें सीरत से आपको नहीं मिलेंगी जो बताती हैं कि सहाबा का जज्बा, ये नबी की इत्तिबा का कैसा जज्बा था। हदीस मिसवरा बिन मखरमा सुलह हुदैबिया के मौके पर बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। जब अब सुलह हुदैबिया का मौका था तो मुशरिकीन की जानिब से बहुत सारे ऐसे मुआमलात हुए थे, ऐसे मुआमलात हुए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के साथ बहुत सारे इत्तफाक़ात किए। तो जब मुशरिकीन की जानिब से एक शख्स आया तो उसने आकर देखा कि सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा मुआमला करते हैं। कहता है कि खुदा की कसम मैं देखता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का प्याला मंगाया, आपने एक प्याला मंगाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको लेकर वज़ू करने लगे। कहते हैं कि खुदा की कसम एक कतरा पानी भी सहाबा नीचे नहीं गिरने देते थे, नीचे सहाबा के हाथ थे, कतरा गिरता सहाबा इकराम नबी के वज़ू का पानी लेते और अपने चेहरों पर हाथों पर मल लेते। तो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े सरदारों को देखा था, लेकिन जितनी ताज़ीब, जितना एहतराम वो अल्लाह के नबी का सहाबा करते हैं, मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा। मुआमला तो ये था कि सहाबा इकराम निगाह भर कर अल्लाह के रसूल को ना देखा करते, आप कहते सब खामोश हो जाते, आप खड़े हो जाते, सब बैठ जाते। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का नबी की इत्तिबा और एहतराम का जज्बा था। मुहतरम हाज़रीन, सहाबा इकराम तो नबी के ऐसे मुत्तबे थे कि बड़े बड़े मुआमलात हुए, यहाँ अपना गैर नहीं, अगर उनका सगा बाप भी होता जो नबी का मुखालिफ होता और नबी की इत्तिबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता, सहाबा इकराम बख्शा नहीं करते। बड़ी हदीस मशहूर है कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये मुनाफिकों का सरदार था। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के काम से बाहर गए थे, आप मदीना में दाखिल हो रहे थे। जब आप मदीना में दाखिल हो रहे थे तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने चंद रफ़क़ा के साथ एक जगह बैठा हुआ था। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर आ रहे थे तो उस वक्त तो कुछ धूल निकली, मिट्टी थी तो लिहाजा धूल निकली। तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज मारते हुए कहा कि लक़द गब्बर अलैना इब्नु अबी कबशा, कि इब्नु अबी कबशा यानी अबी कबशा के बेटे ने हमारे सर पर गुबार चढ़ा दिया, यानी आपके आने से धूल आ गई। यह एक खतरनाक एतराज़ था। अरब के लोगों का माहौल यह था कि जब किसी इंसान को इज्जत देनी होती तो उनके बापों में से मशहूर आदमी का, यानी उनका बाप अगर मशहूर होता तो उस आदमी का हवाला दिया जाता। लेकिन अगर किसी की इज्जत निकालनी होती, किसी पर आयब लगाना होता तो ऐसे इंसान का नाम लेते या उनके बाप दादाओं में किसी ऐसे का नाम लेते जो गैर मारूफ होता। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने ऐसे ही किया। इब्नु अबी कबशा, अबी कबशा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना थे और ये लोगों में पहचान नहीं थे। जैसे ही उसने अल्लाह के नबी को उनके नाना का नाम लिया, गोया वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कह रहा था कि ना आपके नाना कोई जानता ना आपको कोई जानता। एक एतबार से आयब दिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं भी नहीं हूँ और मैं इब्नु अबी कबशा नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का बच्चा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब बड़े मारूफ थे, कौम के सरदार थे। उसने ऐसे इंसान का नाम लिया जिसे कोई जानता नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने अबू तालिब का, अब्दुल मुत्तलिब का नाम लिया जो बड़े मारूफ थे। यह सारा मामला हुआ। अब यह मामला होने के बाद अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के बेटे अब्दुल्ला जो मुसलमान थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए।
अब उनको पता चल चुका था कि अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल ने अल्लाह के नबी के साथ कैसी बदतमीजी की। आकर कहते हैं वल्लज़ी अकरम, कहते हैं उस जात की कसम जिस जात ने आपको इज्जत दी है, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, उस जात की कसम जिस जात ने आप पर कुरान को नाजिल किया है, लइन अमरतनी लआतीतुका बिउनक़ि, आप मुझे हुक्म दे मैं अपनी बाप की गर्दन को लाकर आपके सामने रख दूंगा। आप मुझे हुक्म दे मैं आपके बाप मेरे बाप की गर्दन को लाकर रख दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बात कही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, उनके जज्बे को देख रहे हैं, उनके हाव भाव को देख रहे हैं कि इंसान सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बद एहतरामी करता है तो हजरत अब्दुल्ला आकर अपने बाप की कत्ल की इजाजत मांग रहे। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, बिर अबाक, तुम अपने बाप के साथ एहसान सलूक करना, व अहसन सोहबतु, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। आपको पता था मुनाफिकों का सरदार है, लेकिन उसको कत्ल करना फितने का बाइस हो सकता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। आप देख सकते हैं कि सहाबा का जज्बा कैसा था। सहाबा इकराम नहीं देखते कि सामने वाला अपना है या गैर है, अगर वह नबी की मुखालफत करता है, नबी का दुश्मन है, तो ऐसा इंसान हकीकत में किसका दुश्मन है? हकीकत में अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। मोहतरम हाज़रीन, सहाबा इकराम की कितनी ऐसी मिसालें नहीं है जिन मिसालों के जरिए सहाबा ने ये बात बतला दी कि अगर उनके बाप दादा भी नबी की सुन्नत की मुखालफत करने वाले होते, उनसे कोई मोहब्बत ना होती। बदर का वो वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान मुसलमान हुए तो वो अपने अब्बा के पास आकर कहते हैं, अरे अब्बा जान, आपको वक्त याद है जब बदर का मकाम था, बदर के मकाम पर मैंने देखा कि आप मुसलमानों की तरफ से, मैं मुशरिकों की तरफ से, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई खुदा की कसम मैं आपसे अपने आप को दूर कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी तलवार के नीचे आ जाएं। मैं अपने आप को आपकी तलवार से दूर कर रहा था, मैं आपको अपनी तलवार से बचा रहा था। ये सारी बात हजरत अबू बकर ने सुनी और कहा, खुदा की कसम ए बेटे, तुमने मेरा इतना सोचा, तुम उस वक्त काफिर थे, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते मैं तभी मार देता। मैंने देखता कि मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। बसा औकात ये बात वाज़े है कि बाप अपने बच्चे पर जितनी शफकत करता है उतनी शफकत बच्चे अपने बाप पर नहीं करते। इसके बाद भी हजरत अबू बकर कहते हैं कि खुदा की कसम तुम मुझे बचा रहे थे, अगर तुम मेरी तलवार के नीचे आते मैं तुम्हें कत्ल कर देता। बात यह नहीं थी कि तुम मेरे बेटे हो, बात यह थी कि तुम अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हो और उनकी मुखालफत में आओ। और यही मकाम सहाबा इकराम का था। मोहतरम हाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इंसान को कैसा करना चाहिए? आप जानते हैं, अभी बताया गया कि मकसद ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, लिहाजा हमारा उठना हमारा बैठना जिंदगी का हर तर्ज क्या है? नबी की सुन्नत पर हो। आज देखें क्या सुन्नतों को छोड़ना हमारी आम बात हो गई। सुफियान सौरी रहमुल्लाह ने कितनी बड़ी प्यारी बात कही थी। सुफियान सौरी रहमुल्लाह फरमाते हैं, इन इस्तताअत अल्ला तहुक रासक इल्ला बिअज़्न फफ़अल, कहते हैं कि नबी की इत्तिबा, सहाबा की इत्तिबा तुम्हें इस कदर करनी चाहिए कि अगर तुम्हें अपना सर भी खुजाना हो और अगर इस पर कोई हदीस मिलती है तो वैसे खुजाओ जैसे हदीस के अंदर मिला। हर बात हर काम कैसे करो? जैसे नबी ने किया, जैसे सहाबा ने किया, क्योंकि यही हमें आखिरत में बचाएगा। अमल का जज्बा ये सिर्फ इंसान को कामयाब नहीं करेगा, नबी के तरीके पर जो अमल किया जाए वो इंसान को क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बचाएगा। आज हमारा माहौल क्या है, हाल क्या है? नबी की सुन्नत की बात तो हम भी करते हैं, इत्तिबा के दावे भी हम भी करते हैं। आज लोग आते हैं पूछते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, बताइए हलाल है कि हराम है? कितने ऐसे हैं जिन्होंने 2 सगी बहनों से शादी कर ली, मामलात में रिश्तेदारी काट लिया, किसी ने कहा हक मार लिया, सब गुनाह करने के बाद आकर पूछते हैं ये हमने किया हलाल है कि हराम है? हराम काम करने के बाद पूछते हैं, नबी की मुखालफत करने के बाद पूछते हैं। हक तो ये था कि काम करने से पहले पूछते ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सहाबा इकराम यही तो करते थे, करने से पहले पूछते, और हम गुनाह करने के बाद बताते हैं और पूछते हैं। ये बात बताती है कि अब हकीकत में कितने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबी हैं और कितने हमारे दावे झूठे। मोहतरम हाज़रीन, आप जानते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह के वादे किए थे, सहाबा इकराम ने उस वादों को पूरा किया। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली रज़ी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मैंने बैत की। गोया एक तरह से अल्लाह के नबी से वादा किया। किस बात का वादा किया? वादा ये था कि मैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत करूँगा और हर मुसलमान के लिए खैर खा बनूंगा। किस बात का वादा किया? कि मैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत करूँगा और हर मुसलमान के लिए खैर खा बनूंगा। अब हुआ ये कि कई साल गुजर गए, उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि जाओ ये पैसे ले लो और इस पैसे से एक घोड़ा खरीद कर लाओ। अब वो गुलाम गया और जाने के बाद एक घोड़ा उसे पसंद आया और घोड़े के ताल्लुक से उसने डील कर दी कि ये घोड़ा मैं 300 में खरीदूंगा, आओ मेरे आका के पास। घोड़ा बड़ा अच्छा था, तो जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह अन्हु का गुलाम जो है उस घोड़े को और उस मालिक को लेकर आया और बात की, कहा कि मेरे आका मैंने इस घोड़े के ताल्लुक से गुफ्तगू की है, 300 दे दे और इस घोड़ों को ले ले। अब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह देखते हैं कि घोड़ा 300 का नहीं है, ये महंगा घोड़ा है, लिहाजा इसने बातचीत करके घोड़े के रेट को कम किया। अब उस घोड़े के मालिक से कहा कि इस घोड़े को तुम कितने में बेचोगे? तो कहा कि 300 में तो बात हो चुकी है। कहने लगा अगर मैं 400 दूं
کہا منظور ہے. کہنے لگے اگر 500 دوں تو کہا منظور ہے, اگر 600 دوں کہا منظور ہے, اگر 700 دوں کہا منظور ہے, کہا اگر 800 دوں تب بھی کہا کہ منظور ہے. اب 800 نکال کر دے دیے اور وہ آدمی بڑے خوشی سے وہ اپنے گھوڑے کا رقم لے کر چلا گیا. اب غلام بڑا تعجب ہوا کہ تجارت مکاری ہے, تجارت چالاکی ہے, میں نے 800 کے گھوڑے کو 300 پر خریدا تھا اور آپ نے اسے 800 دے دیے. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا اور عہد کیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بنوں گا, میں اس کے 800 کے گھوڑے کو 300 پر خریدوں, یہ اس کی خیر خواہی نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ مکاری ہے. لہذا اس کا گھوڑا 800 کا تھا, میں نے اسے 800 دیے اور اسی بات کا وعدہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. یہ اطاعت کا جذبہ یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. محترم حاضرین, یاد رکھیے یہی اطاعت اللہ اس کے رسول کے لیے ہمیں کام آنے والی ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا, اسی جذبے کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا جذبہ ہمیں پیدا کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ اپنی رضامندی کے اظہار ہم سے کرائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.